Okay. So, Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir, and I am the Director of Operations at Parsa Echo Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to yet another Echo session in series of Hepatitis Echo, supported by unrestricted educational grant by Proson's Laboratories Limited, and it's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is a case-based discussion with experts, and our expert for tonight is Dr. Zishan Ali Junejo. Before I introduce to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions or use raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel, and link will be shared by Haris in chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. For convenience of the spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert today is Dr. Zishan Ali Junejo, is a fellow of College of Physician and Surgeon, Pakistan, and currently working as Associate Professor of Medicine at Jinnah Sindh Medical University and Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, Pakistan. He has been involved with Parsa Echo Pakistan since the very beginning and been a true Echo champion. He is the Echo lead in province of Sindh and has a keen interest in medical education. Currently, he also holds a portfolio of Vice President, Pakistan Society of Hepatology. He is responsible for overseeing all projects related to Sindh and enrollment of spokes locally. So should I hand over to Dr. Oj for case presentation, or we should continue with some introductions? I think we should continue with the introduction. Not a lot of people at the moment. So I am Dr. Asad Chaudhary, and I'm a Director, Parsa Echo Pakistan, joining from Gujranwala. Uzair? I am Uzair Ali from Parsa Echo Pakistan, and I am working over here as project coordinator. With me is Haris Maris, who is working as IT specialist. Thank you. I am Dr. Anwar Ali? Sorry. Yes, Assalamu alaikum. I am Dr. Anwar Ali Bhutta from Ukhada. I am primary care physician और आपका रेगुलर स्टूडेंट हूँ जुनेजो साहब का भी और असद चौधरी साहब का भी अल्ताफ साहब का भी थैंक यू अस्सलाम वालेकुम जी महक जुनैद you can unmute yourself Mehak. Okay, Dr. Oj. Dr. Oj, you can unmute yourself. Yes, Assalamu alaikum. I'm Dr. Oj. I'm currently working as the medical officer in Chaudhary Hospital under Dr. Asad Ali Chaudhary. Thank you, Dr. Oj. Dr. Amit Kumar. Dr. Kumar, you can unmute yourself. I am working as a physician at the James Jacobabad. Thank you, Dr. Kumar. Dr. Sultan. Dr. Sultan Ahmed, you can unmute yourself. Okay, Dr. Sultan is joining. Dr. Sultan, आपका introduction. I am Dr. Sultan Ahmed and working as assistant professor at Zandga Medical College, Ladkana. Thank you, Dr. Sultan. Thank you for joining, sir. जी Zishan, आपका introduction काफी सारा हो गया है, but thank you very much for being here. जी Zishan. जी, I am Dr. Zishan Ali, working as Associate Professor of Medicine at Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi. Oj, I think if you can start case number 1. Uzair, आपने share
जी मैंने शेयर कर दी। Dr. Raj, can you see the screen? Ji, I can see the screen. थोड़ा Should I? सा आप जूम करेंगे? थोड़ा सा जूम। मेरा ख्याल है काफी है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन सारी एक उस पे। ठीक है, ओके। Should I start the case now? जी जी जी, और प्लीज। So the first case is a 28-year-old male, non-smoker and non-alcoholic, no comorbidities. He's C positive in chronic liver disease, has an history of antiviral treatment in 2015, is SVR positive. In September 2021, he presented with pruritus, epigastric pain, nausea, and restlessness since 1 month. On examination, jaundice was positive and abdomen was soft and epigastric tenderness was present. Chest bilaterally clear. Family history was not significant. As you can see the investigation, CBC was normal. There was a significant rise in LFTs from July to September. And in October, there's a gradual decrease in bilirubin and LFTs. Not much in ALT, AST, but significant decrease in bilirubin. PTINR was 15.2 by 1.3 and sugar was normal, anti-HCV reactive, HBs antigen negative, and PCR was not detected. Anti-HIV IgM was non-reactive, hepatitis E virus IgM was reactive, and HP core IgM was negative. Zerbe, can you shift it down? The ultrasound showed normal liver, no splenomegaly or ascites, and no SOL in liver. The questions regarding this case are what other investigations are required in this patient and how will you manage this case if the LFTs do not improve? Should we advise hepatitis E virus RNA by PCR? And what should be the treatment plan if HEV RNA by PCR is detected? Thank you. थैंक यू आज। मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा इससे पहले कि जीशान इस पर अपने एक्सपर्ट कमेंट दें। तो हमारे पास एक यंग जेंटलमैन है, नो कोमॉर्बिडिटीज और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था और 2015 में एसपीआर अचीव्ड है विद एंटीवायरल ट्रीटमेंट। और हमारे जो फर्स्ट टाइम जो क्लिनिक में देखा गया वो प्रूराइटिस और एपिगैस्ट्रिक पेन, रेस्टलेसनेस ऑफ 1 month ड्यूरेशन, और ये वो वक्त था जब इनका बिलिरुबिन 8.2 पे था। लैब्स में हेपेटाइटिस सी आरएनए इज नेगेटिव बाय पीसीआर, हेपेटाइटिस ई आईजीएम इज पॉजिटिव, AIgM एंड हेपेटाइटिस बी कोर IgM आर नेगेटिव। ये वो लैब्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। और रिसेंटली जो LFTs हैं, दे आर शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तो हमारी हिस्ट्री 3 months पे स्पेन करती है, जिसमें हेपेटाइटिस का ट्रेंड शुरू हुआ, फिर जॉन्डिस हुआ और अब वो चीजें सबसाइड कर रही हैं और पेशेंट हैज ओनली बीन ऑन सपोर्टिव ट्रीटमेंट, कोई एंटीवायरल दवाई नहीं दी गई। तो क्वेश्चन ये है जीशान, ऑन द बैकग्राउंड ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी ट्रीटेड पेशेंट विद SVR, हाउ मच शुड बी वरीड? क्योंकि मरीज काफी वरीड था और होते भी हैं कि जी ये मेरे 3 महीने हो गए, LFTs जो हैं वो नॉर्मल नहीं हो रहे, तो मैंने और टेस्ट कराने हैं, मैंने कोई दवाई खानी है, तो उसके बारे में अब पेशेंट की हमने एंजाइटीज को एड्रेस करना है। जी जीशान, ओवर टू यू। थैंक यू, इट्स एक्सीलेंट केस एंड इसमें हम क्वेश्चंस जनरेट करते हैं अपने कि इस केस के अंदर नंबर 1 हिस्ट्री इसकी हेपेटाइटिस सी की है, ट्रीटेड हेपेटाइटिस सी। डज दिस पेशेंट करंट प्रेजेंटेशन रिलेट टू दिस हेपेटाइटिस सी? अब उसका आंसर ये है कि जब इसको हेपेटाइटिस सी 2015 में ट्रीट किया गया था उसका तो डेटा हमारे पास अभी मौजूद नहीं है कि ये वाज ही सिरोटिक और नॉट, वाज ही हैविंग एडवांस फाइब्रोसिस एट दैट टाइम और नॉट। लेकिन जो करंट डेटा है प्रेजेंटेशन का, उसमें प्लेटलेट काउंट ठीक है, एल्ब्यूमिन ठीक है, तो वी एंटिसिपेट कि शायद ये सिरोटिक लिवर एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि दैट वुड आंसर 2 क्वेरीज। 1
कि लॉन्ग टर्म फॉलोअप की जरूरत हेपेटाइटिस सी के कॉन्टेक्स्ट में है भी या नहीं, कि ये जो अभी करंट प्रॉब्लम है उससे कोई रिलेट कर सकती है या नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि HCC सर्वेलेंस की जरूरत थी या नहीं थी इसको। तो अगर ये सेरोटिक नहीं है तो HCC सर्वेलेंस नहीं है, और अगर ये सेरोटिक और एडवांस फाइब्रोसिस का केस नहीं है तो हेप सी को वंस SVR अचीव उसको फॉलो करने की कोई गाइडलाइन नहीं है कि बार बार हम उसका PCR करवाते रहें। तो वन फॉर द आंसर फॉर द के जो इसकी हिस्ट्री रिलेटेड टू हेप सी है उसका आंसर। नाउ एक और जो प्रेजेंटेशन है वो अक्यूट हेपेटाइटिस की प्रेजेंटेशन है, और दैट अक्यूट हेपेटाइटिस हैव नॉट रिजॉल्व्ड इन लास्ट 12 जो है वीक्स और सो, कि ये 3 महीने की तकरीबन हिस्ट्री दे रहे हैं, और ये हिस्ट्री 20 जुलाई से अगर हम लेते हैं 13, तो तकरीबन कोई ये 11 हफ्ते बनते हैं। तो 11 वीक से नॉन रिजॉल्विंग हेपेटाइटिस है, दो द LFT पैटर्न हैव शोन सम सेटलिंग, जिसे कहते हैं ना कि बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, कि ALT नॉर्मलाइज हो रहा है, बिलिरुबिन नॉर्मलाइज हुई है, सो इट इज शोइंग सम साइन, बट इट हैज टेकन एटलीस्ट 11 वीक्स। ठीक है ना, तो दिस इज वन क्वेश्चन वी नीड टू आंसर। फिर क्रॉनिसिटी का क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ हेपेटाइटिस अक्यूट हेपेटाइटिस ई है, इज इट गोइंग इनटू द क्रॉनिक फेज, और इट इज समथिंग एल्स एज वेल, कि कुछ और तो नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस डू शो रेजोल्यूशन इन 4 to 6 weeks, but in literature it has been reported to go beyond 3 months, and where it is labeled as chronic hepatitis E presentation, और in some cases it is relapsing hepatitis के तौर पे भी ये प्रेजेंट करता रहा है, though it is more common with hepatitis A relapsing hepatitis, लेकिन E के साथ भी कुछ केसेस रिपोर्टेड हैं जिसमें रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस है। तीसरी चीज जो हेपेटाइटिस ई के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखनी है, इज ही द केस हु वी शुड बी वरीड अबाउट सब एक्यूट हेपेटिक फेलियर। एक तो एक्यूट हेपेटिक फेलियर होता है ना, जिसमें पेशेंट आया एक्यूट हेपेटाइटिस से और इंप्रूव ही नहीं हुआ एंड गोज ऑन। अब इस केस में क्योंकि 3 महीने की हिस्ट्री है, तो दिस कुड बी ए सब एक्यूट हेपेटिक फेलियर, fulminant hepatic subacute fulminant hepatic failure, and that would be very dangerous, क्योंकि जो सबक्यूट होते हैं उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। बट लुकिंग एट द INR, और क्योंकि वो दो चीजों पे फिर डिफाइन होता है ना, कि INR डिरेंजमेंट और दूसरा जो है एंसेफेलोपैथी। एंसेफेलोपैथी की कोई हिस्ट्री नहीं है, INR 1.3 है, दैट्स इन ए सेफर जोन। कि INR अगर मोर देन 3 होता तो दैट वुड हैव बीन ए इंडिकेशन कि ये एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है, जा चुका है इनफैक्ट, अगर INR 3 तक पहुंच गया है तो दिस इज व्हाट आई वुड के जो टीचिंग पॉइंट्स हैं इस केस के अंदर, जिसको लेके हमें आगे चलना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, कि इसमें और कुछ कराना है नहीं कराना है, do we need to do any other test? This patient is very borderline case for a chronic hepatitis E. I've got a message कि मेरी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, is that बाकी लोग सुन पा रहे हैं? Zishan, it is good here. Please go on. मेरे ख्याल में ये महक का कोई वाईफाई का ना हो. It's perfect here. ठीक हो गया, ओके। सो क्वेश्चन के कुछ और कराना है नहीं कराना है। वन, इज इट हेपेटाइटिस ई और इट मे बी समथिंग एल्स, क्योंकि हेपेटाइटिस ई अगर उनको अंडरलाइन कोई और क्रॉनिक लिवर डिजीज हो तो बहुत प्रोलॉन्ग प्रोटेक्टिव कोर्स लेता है, सच एज नेफल्ड या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। इस तरह के केसेस के अंदर अगर कोई और लिवर डिजीज हो या हेपेटाइटिस बी या सी अंडरलाइन एक्टिव हो, तो इन पेशेंट्स में प्रोटेक्टेड कोर्स लेता है, क्योंकि लिवर नॉर्मल नहीं होता, ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड होता है, it takes more time to resolve. But here we have to answer, should we look this patient for chronic hepatitis E? Because literature have reported, though in genotype which is prevalent in Pakistan and India, it is very rare. The genotype which is more prevalent in Europe, genotype 3 and 4, it has been more cases have been reported. और chronic hepatitis E के cases immunocompromised cases के साथ स्टेटस के साथ ज्यादा देखे गए हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ ज्यादा देखे गए हैं, rather than in immunocompetent patient. So if we are looking into this chronic hepatitis E, we should look for immune status, we should look for other coexisting liver disease as well, which have led to chronicity of hepatitis E. Asad, do we have another question?
Ji Zishan, question is how will you manage this case if the LF not improved? What other investigation? ठीक है, the question was what जी, other investigation? इसको हाँ ऊपर कर दीजिएगा उज़ैर, इसको मैं नीचे हाँ, क्वेश्चंस से देख लूं सारे. अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस, यस वी वुड लाइक टू लुक फॉर द जो है ना इन्वेस्टिगेशंस कि जिसमें एचईवी पीसीआर शायद हमें करना होगा, क्योंकि वी माइट टेक अ डिसीजन टू स्टार्ट विद एंटीवायरल, जो मैनेजमेंट का सवाल आता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर लिवर डिजीजेस, जिसमें मैंने कहा ना नैश डेफिनेटली वुड बी आंसर्ड ऑन लिवर बायोप्सी, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, उनको हमें स्क्रीन करना होगा इस पेशेंट के अंदर, जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे. पॉसिबल आई वुड लाइक टू गो फॉर द ऑटोइम्यून प्रोफाइल एज वेल, कि एएनए प्रोफाइल और एक्सटेंडेड ऑटोइम्यून लिवर प्रोफाइल चेक करूं टू look into the possibility of primary biliary cirrhosis or autoimmune hepatitis underlying which has led to protected course of acute hepatitis. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जनरली जो जीनोटाइप प्रिवेलेंट है उसमें क्रॉनिसिटी बहुत रेयर है, और फिर इम्यूनोकॉम्पिटेंट में बहुत रेयर हो जाती है. तो आई वुड लाइक टू लुक फॉर द एचआईवी एज वेल, कि अंडरलाइंग साइलेंट कोई एचआईवी वगैरह का केस तो नहीं है कि जिसमें इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज है. So that may be the reason why he have not been able to eliminate this virus within stipulated time. So this is what I would like to look for. Manage को अगर LFTs improve नहीं हो रहे हैं, मतलब 12 weeks है, LFTs have not improved, this is one of the indication के जिसमें you may start with antiviral, और antiviral जो कि recommended है that is ribavirin. उसके अलावा कोई और दवा tested नहीं है. You can start with antiviral जो है ribavirin इस केस में for 6 months, and that may help in eliminating this virus from this gentleman. Asad, do we have another question from the audience? Ji, Uzair, if you can stop share, so we can. Ji, any questions from Dr. Zishan? He's online. सर ये 6 months का इन्होंने हेपेटाइटिस ई का ट्रीटमेंट बताया, तो रिबाविरिन किस डोज में देंगे इसकी? रिबाविरिन हम जो देते हैं वो वही 15 mg पर kg का डोज है. जो वायरस इसमें और भी वायरसेस में हम देते हैं जब रिबाविरिन, दैट रिमेन्स द सेम डोज 15 mg पर kg पर डे, और उसको डिवाइड करके 2 to 3 डोजेस के अंदर हम दे देते हैं. तो वो तकरीबन 1 ग्राम के करीब बनता है. तो वो वही 800 to 1200 मिलीग्राम जो कि हेपेटाइटिस सी में हम लोग इंटरफेरॉन के साथ देते थे, वेट बेस वही मोर और लेस डोज बनता है जो 400 BD या 600 BD के डोज पे हम देते हैं. I may have missed, शायद आपने जिक्र किया हो इस पर्टिकुलर केस में अभी जिस 13th of October को LFTs या सेटलिंग डाउन, तो आप कितने कंसर्न होंगे या काउंसिल कैसे करेंगे इसको? अभी हम LFTs कब कराएं और डिसीजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एज वी डिस्कस के भाई ये 11 हफ्ते हुए हैं, 12 हफ्तों का एक पीरियड होता है, लेकिन क्योंकि पिछले 2 हफ्ते के अंदर वी कैन सी कि क्लियर डिक्लाइन आ रहा है और इम्प्रूवमेंट आ रहा है LFTs में. आई वुड पर्सनली टेक प्रोबेबली जो है 15 डेज के बाद एक LFTs कराऊंगा और अनदर LFTs आफ्टर 15 डेज. तो आई वुड वेट फॉर अनदर 4 वीक्स के जिसमें 2 LFTs 15 डेज अपार्ट करा के, if it is still not settling, I might take a decision to start with antiviral. If I don't see any other cause of the liver disease present which is protecting the course of. Any Dr. Sultan Ahmed Chandio is here. I would like to hear from him also. जी डॉक्टर चांडियो, आप कुछ इस पे कमेंट्स देना चाहेंगे? आई एम श्योर हेपेटाइटिस ई तो आपकी तरफ काफी होगा. Dr. Sultan, are you with us? Okay. Should we move on to the next case? उसके बाद एक ब्रीफ सा केस मुझे आज भी मिला है. डॉक्टर औज
हम सेकंड केस पे अगर जा सकें. Yes, sir. Can you see the screen? जी. Okay, so the second case is a 26-year-old female recently diagnosed with acute hepatitis B in September, presented in OPD with complaint of abdominal pain, nausea, and vomiting for 2 months. She has been on TAF for 3 weeks, started by another physician. She had a cesarean section 3 months back, currently not breastfeeding the baby, and no history of itching. Further workup was done. On examination, abdomen was soft and non-tender, just bilaterally clear, and family history was not significant. As you can see, the investigation, CBC was more or less normal. Creatinine was normal. There was a significant rise in LFTs from September, and bilirubin was gradually better in October, but LFTs are still, ALT, AST is still raised. HBe antigen was positive and anti-HBe negative. Hepatitis D virus was also negative. HIV was not available and HBs antigen was positive. Anti-HB core IgM was positive and hepatitis A virus IgG was positive, whereas IgM was negative. And hepatitis E virus IgM was also negative, and hepatitis B virus DNA was detected, as you can see. And the ultrasound abdomen showed, can you lower down the screen a bit? Liver was normal and acalculous cholecystitis and splenomegaly was present. The questions are, what other investigations are required in this case, and should we continue antiviral treatment, and how should we follow up this patient? Thank you. Thank you, औज. मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा. It's another interesting case. और ये relatively common scenario hai. So we have a young female presenting with acute hepatitis B. We are not aware, as far as I remember, surface antigen during pregnancy was negative, and she has been started, जैसे ही hepatitis B का पता चला और bilirubin was high और acute picture थी, तो she was started on tenofovir alafenamide. और जैसे कि आप ने देखा कि 3 months back she has had C-section. Currently she is not breastfeeding, which is her decision. Now you have LFTs in front of you, 17th of September, then 24th of September and 17th of October. Bilirubin has come down. Transaminases are also settling. This lady is on alafenamide and now she comes to see you. Acute hepatitis B is almost proven. Zishan will further comment on that. The question ये है कि अब हम इसका क्या करेंगे? He can क्या कोई और investigations करानी है? क्या हम alafenamide जारी रखें? If yes, for how long? Or whatever decision we make, whether or not to continue treatment, हमारा follow up क्या होना चाहिए? जी Zishan, over to you. Yes, sir. Again, a very good case and relatively a common case. I agree with that. कि pregnancy or antenatal के अंदर test negative आए और then she turned out to be HBs antigen positive and she suffered from acute hepatitis. Instrumentation and hospitalization is one of the risk factor and proven correct in this particular case. Now, question is acute hepatitis B. Does it need treatment? And when does it need treatment? Acute hepatitis B की generally कोई treatment नहीं है. ठीक है ना? We do not need any treatment. Again, if it goes beyond 16 to 20 weeks के ALT normalize नहीं हो रहा या during that phase जो है patient को कोई acute liver failure के features आए, वो encephalopathy है, ascites है और INR more than 3 है. Unfortunately हमारे बहुत सारे healthcare workers में particularly doctors के अंदर ये ALT level जो 2-3 हजार का आ जाता है, that gives a very panic attack to the doctors actually, and that probably have led to the prescription of TAF, and we will discuss that as well कि जो antiviral treatment दी गई इसको
उसके पीछे जो है बैकग्राउंड वो था कि वेरी हाई ALT के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया था एंड इम्पेंडिंग लिवर फेलियर विदाउट नोइंग द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अक्यूट लिवर फेलियर के जो हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड है। तो उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में शायद ये ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई है। वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ठीक है ना। तो दिस इज acute hepatitis B। acute hepatitis B और within 4 weeks window के अंदर है। It does not warrant any treatment. There is no sign of acute liver failure. If this case has been reported to me or Asad or someone, we may not have started any medications to her. ठीक है ना। क्यों? क्योंकि acute hepatitis B के अंदर uncomplicated acute hepatitis B के अंदर किसी ट्रीटमेंट की गुंजाइश नहीं है। कब जरूरत होती है अदर देन लिवर फेलियर? अगर acute on chronic liver disease है, अंडरलाइन कोई और लिवर डिजीज है जिसमें रिस्क ऑफ फेलियर फिर बढ़ जाता है। पेशेंट नैश की थी, पेशेंट ऑटोइम्यून लिवर डिजीज की थी, पेशेंट को सी पहले से था और वो पेशेंट सिरोटिक या एडवांस फाइब्रोसिस की थी उसकी वजह से। इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज स्प्लेनोमेगाली, बट माइल्ड स्प्लेनोमेगाली कैन बी ए नॉर्मल सिनेरियो फॉर एनी जो है acute liver disease. What we should look for कि platelet count देखें, albumin देखें। Again albumin to begin with 3.3 it was of lower side पे था और platelet 177 थे। तो possibility at that time के anticipate किया गया हो कि ये acute flare है in a chronic liver disease hepatitis B, क्योंकि उसमें भी जो है वो IgM पॉजिटिव आ जाता है कि acute exacerbation के अंदर। बट दैट इज नॉट द केस हेयर, क्योंकि इसका जो असद ने बताया कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सरफेस एंटीजन नेगेटिव था। तो अगर तो ये केस acute फ्लेयर ऑफ हेपेटाइटिस बी अंडर इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट होता तो उसमें एक्जियस एंटीजन की पहले से पॉजिटिव होता और IgM फ्रेशली पॉजिटिव हुआ होता। दैट इज हाउ वी डिफाइन acute फ्लेयर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स, क्योंकि एट टाइम्स इट डज प्रेजेंट विद acute फ्लेयर्स, जिस ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस करता है या जिस विल्सन डिजीज के पेशेंट्स होते हैं और एक्यूट फ्लेयर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, अंडरलाइंग क्रॉनिक लिवर डिजीज होती है। सो दिस लो एल्ब्यूमिन मे हैव बीन रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी, कि ये प्रेगनेंसी से बाहर आई है, उसमें न्यूट्रिशनल, दैट मे बी ए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन टू दैट, बट दिस इज ए टिपिकल केस ऑफ acute हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ टैफ। टैफ की इंडिकेशन क्या है, कब हमें टैफ देनी चाहिए? नॉट एवरी पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी इज, टैफ की एक लिमिटेड इंडिकेशन है और वो लिमिटेड इंडिकेशन ये है कि एल्डरली पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट है, डायग्नोज्ड ऑस्टियोपोरोसिस है। ये वो केसेस हैं जहां पे आप जो है टैफ को प्रेफर करते हैं ओवर TDF और जो है एंटाकावेर, ठीक है। एंटाकावेर एंड TDF शुड बी द बेसलाइन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन and TAF should be as a secondary treatment option as per indication of the most of the guideline। AACD देखें या आप EASL guidelines को देखें, ठीक है। So this is how I would like to keep this case कि भाई ये patient जो है acute hepatitis B है, but having said that कि ये क्योंकि splenomegaly है, to begin with albumin थोड़ा सा lower side पे था, I would like to follow this patient कि अभी तो हम ट्रीटमेंट ना दें, क्योंकि जो 24 वीक्स के विंडो के ऊपर हम इसके LFTs कराते रहें every 2 weeks, और फिर at the 24 weeks we may take a decision to start with antiviral or not to start it based on guidelines of chronic hepatitis B. Next question मुझे दिखाइएगा उधर। इन्वेस्टिगेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं? इफ यू सी के इन्वेस्टिगेशंस तकरीबन रेलेवेंट अभी के acute hepatitis के हिसाब से हुई हुई हैं, इसको फॉलो हमें करना होगा with INR, albumin and जो है if required ultrasound abdomen to look for the presence of ascites। Pericholecystic acral plus status feature of acute hepatitis के pericholecystic fluid हमें मिलता है and that is ultrasound findings of acute hepatitis के साथ associated होता है। Should we continue the antiviral therapy? No, I don't think so. At this point, we should be continuing with antiviral therapy. बहुत short history है. It is very likely that she would resolve, क्योंकि अगर अभी हम antiviral इसको देंगे तो जो natural immunity है that may take care of this, which is very likely, क्योंकि adulthood में जब hepatitis B acute होता है तो 90% chances ये हैं कि वो self resolution पे चला जाएगा, ठीक है ना।
तो वो हम उस नेचुरल इम्यून सिस्टम का जो प्रोसेस है उसको जो है अफेक्ट करेंगे, एंड लाइवलीहुड ऑफ क्रॉनिसिटी में इंक्रीज. दिस इज नॉट ए वेरी प्रूवन केस, बट दिस इज व्हाट आई थिंक के जो 90% रेजोल्यूशन है बिकॉज ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स. अगर आप वायरल रेप्लिकेशन को कम करेंगे तो वो इम्यून रिस्पॉन्स भी ब्लंट हो जाएगा, एंड वी मे नॉट बी एबल टू गेट elimination of hepatitis B or complete recovery from this particular patient. Follow up, yes, we would be following every 2 weeks, और अगर ये 24 weeks onward hepatitis में रहता है तो we'll treat for the antiviral therapy at that time. जी जीशान, मैंने इसमें चैट में भी लिखा है कि फॉलोअप में आप कब इन लोगों का डीएनए रिपीट करना चाहेंगे और मे बी HbS सीरो कन्वर्जन देखना चाहें? उज़ैर, आप स्टॉप शेयर कर दें बेशक. जी, दैट अगेन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कब आप इम्यून स्टेटस को चेक करेंगे. हमने जैसे बात की एवरी 2 वीक्स विल फॉलो द ALT अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा तो 24 वीक्स के ऊपर हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की लाइन में ट्रीट करने का प्लान करेंगे. लेकिन अगर रिजॉल्व हो जाता है कंप्लीटली, दैट इज द टाइम व्हेन वी वुड लाइक टू सी, एंड वी होप दैट दैट हैपेंस कि anti-HbS पॉजिटिव आ जाए. तो ये है कि 4 to 6 weeks आफ्टर ALT नॉर्मलाइजेशन आई वुड लाइक टू चेक HBV DNA एंड anti-HbS. इफ फर्स्ट अगेन नेगेटिव 3 months के बाद दोबारा इसको रीचेक कर सकते हैं फॉर eradication of hepatitis B in this particular case by self immunity. थैंक यू. मेरा सिर्फ इसमें मैसेज ये है कि जिस तरह ज़ीशान ने जिक्र किया कि nearly 90% of the adults they will self clear the virus, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है unless के कोई और predisposing condition हो, और पैनिक ना हो. ये बड़ा मसला है. एक्चुअली इस पेशेंट की हमने एंटीवायरल स्टॉप कर दी हुई है, तो मे बी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी वुड बी एबल टू अपडेट यू, अगर हमें कोई याद करा दे और पेशेंट फॉलोअप में उस तरह से आ जाए. लेकिन आप ट्रीटमेंट के लिए पैनिक ना हो, क्योंकि उसकी इतनी जरूरत नहीं होती और बाद में बड़ा मसला होता है इसको पेशेंट को काउंसल करना. दूसरा, और हम विद इन कोलीग्स भी समटाइम्स हम प्रेशर फील करते हैं कि हम किस है, लेकिन द करेक्ट डिसीजन विल बी टू स्टॉप द ट्रीटमेंट. एक सवाल आया है कि इफ वायरल लोड in third trimester is 2 lakh, then should we start antiviral to reduce the levels at the time of delivery? Exactly. देखें, अब ये तो था acute hepatitis after the pregnancy. Managing hepatitis B, chronic hepatitis B in pregnancy, that warrants कि आप उसके जो है ना वायरल लोड चेक करें, और 2 लाख के ऊपर डेफिनेटली लास्ट 4 वीक्स के अंदर जो है एंटीवायरल थेरेपी रिकमेंडेड है. लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर बहुत ज्यादा हो, नहीं तो लास्ट 4 वीक्स के अंदर तो डेफिनेटली आप स्टार्ट करते हैं, और एटलीस्ट 3 months आफ्टर द पार्चुरेशन जो है ना आप डिलीवरी जो है यू कंटिन्यू विद द एंटीवायरल थेरेपी. 3 months के बाद एंटीवायरल थेरेपी आफ्टर द प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का डिसीजन बेस्ड ऑन क्रॉनिक हेपेटाइटिस की उस वक्त जो प्रोफाइल है. इफ शी वारंट्स ट्रीटमेंट एज ए क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट, शी शुड बी कंटिन्यूड. इफ वी डज नॉट वारंट एनी एंटीवायरल थेरेपी at that point, otherwise जो अगर प्रेगनेंसी को साइड पे कर दें तो फिर we may stop the treatment at that time as well. तो प्रेगनेंसी के अंदर यस एंटीवायरल, और जो कैटेगरी बी ड्रग है प्रेगनेंसी के अंदर अप्रूव्ड ड्रग है, दैट इज टेनाफोविर TDF. जी, एक और कमेंट है डॉक्टर ये नसीर साहब का, सरफेस एंटीजन एंड anti-HbS एंटीबॉडी शुड बी चेक्ड आफ्टर 6 months, विच इज फेयर. मेरे ख्याल में अगर LFTs नॉर्मल हो गए हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि आप 6 months के बाद उसको चेक करें. ज़ीशान, यू हैव टू ऐड एनीथिंग ऑन दैट? नहीं, वो दैट्स वेरिएबल. यस, 6 months इज द टाइम व्हेन यू मेक इट कंफर्म डिसीजन कि ये जो है ना सेल्फ क्लियरेंस पे नहीं गया है, and you can very safely say that this patient is suffering from chronic hepatitis B, and then to any other question or comment in this scenario? सर, ये सी सेक्शन इसका हुआ 1 महीना पहले, तो उस वक्त इसका HB था 12.9, और अब जो अक्टूबर में है वो 13.7 है. क्या इसको इस सी सेक्शन के दौरान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी गई है? ये नहीं मेंशन हुआ हुआ. डॉक्टर अनवर, ये गालबन सी सेक्शन जून में हुआ था,
और ये जो आपके पास रिपोर्ट है ये 70, क्योंकि इसका 3 महीने पहले, इस प्रेजेंटेशन से 3 महीने पहले सी सेक्शन हुआ था। जो इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और वैलिड भी है। देखने वाली बात ये है जो यहाँ पे जिक्र नहीं है कि इसको उस वक्त ब्लड लगा था कि नहीं लगा था। और आपको पता है कि एक्सपोजर टू हॉस्पिटल प्लेसेस प्रोसीजर इन इटसेल्फ इज अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस बी एनीवे। तो इस हिस्ट्री में ये मेंशन नहीं है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू डिग आउट के उस वक्त क्या हुआ था। जी, एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट एंटीवायरल्स इफ द पेशेंट गोज इनटू एक्यूट परमानेंट हेपेटाइटिस बी और उसके बाद उसके प्रोग्नोसिस पे कितना इफेक्ट होगा इसका? गुड क्वेश्चन फारूक। अच्छा, एंटीवायरल जो ट्रीटमेंट अप्रूव्ड है हेपेटाइटिस बी की, वो 3 दवाएं हम कॉमनली यूज करते हैं। चौथी दवा हम आजकल यूज नहीं करते हैं, दैट इज इंटरफेरॉन। बाकी जो दवा अवेलेबल है या फ्रीली, दैट इज एंटाकाविर, टेनोफोविर के फिर 2 वेरिएंट्स हैं जिसमें टीडीएफ और टैफ है। जो दवाएं हैं वो टीडीएफ एंड एंटाकाविर, यही दवाएं हैं। इवन इफ द पेशेंट इज इन अ फेलियर, दैट्स व्हाट यू हैव स्टार्ट विद। जो अक्यूट लिवर फेलियर की ट्रीटमेंट है वो भी उसमें एंटीवायरल यही रहेंगे और इसको हम स्टार्ट करेंगे। एज फार एज प्रोग्नोसिस इज कंसर्न, acute liver failure is a serious life threatening presentation. It needs a lot of supportive care क्योंकि हमें ये भी पता है कि liver regenerate कर जाता है। It is the time which we need to give the patient to regenerate the liver। उसमें आपने viral replication suppress करनी है, inflammation suppress करनी है, nutrition, electrolyte और जो है उसको replenish करना है कि patient के liver को time मिल जाए और वो रीग्रो कर जाए और एक फेज से ये पेशेंट गुजर जाए। क्योंकि वायरस की अपनी इम्यूनोजेनेसिटी तो है लेकिन साइटोटॉक्सिक इफेक्ट नहीं है लिवर के ऊपर। तो यस, एंटीवायरल इज इंडिकेटेड, दैट विल सप्रेस द वायरल रेप्लिकेशन, बट इट इज द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी व्हिच इज लीडिंग टू द लिवर फेलियर। तो वो सेटल होने में टाइम लगेगा एंड देन लिवर विल रीजनरेट। तो प्रोग्नोसिस इज यस, एक्यूट लिवर फेलियर के अंदर मोर्टेलिटी इज हाई, बट रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट कोई ऐसी स्टडी आई डोंट रिमेम्बर, असद अगर उसमें ऐड ऑन कर सकें तो कि कोई एक्यूट लिवर फेलियर के अंदर रिस्पॉन्स टू द थेरेपी और प्रोग्नोसिस के ऊपर कोई जो है स्टडी हुई है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। I'm afraid I cannot comment on that also. बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, that's what I can say. लेकिन इन एक्यूट लिवर फेलियर ये जरूर है कि तब ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स दिया जाता है। ये एक और कमेंट है, चेकिंग वायरल लोड ड्यूरिंग 6 months इज नॉट नीडेड इफ सरफेस एंटीजन इज पॉजिटिव आफ्टर 6 months then should be treated as chronic hepatitis if indicated। लेकिन आपको 6 months में डॉक्टर नसीर उस वक्त वायरल लोड तो देखना पड़ेगा ना। अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो फिर आपका वायरल लोड तो देखना पड़ेगा। लेकिन सरफेस एंटीजन और एंटी-एचबीएस, अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन सीरो कन्वर्जन हो गई है एट 6 months तो फिर डीएनए को स्किप किया जा सकता है। जनरली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट आते हैं ना उसमें सरफेस एंटीजन लॉस होती है, बट वायरल रेप्लिकेशन इन लो लेवल डीएनए मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। सो अगर आपने एक डिसीजन लेना है कि वायरस, और अगेन सरफेस एंटीजन लॉस इटसेल्फ डज नॉट कीप यू होम, इट कैन बी पॉजिटिव भी हो जाती है, बाद का सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होती है, वायरस नेगेटिव हो जाता है, पीसीआर नेगेटिव आ गया, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, नाउ यू नो कि रेप्लिकेशन तो खत्म है, ठीक है। और अगर बॉर्डरलाइन एलएफटीज चल रहे होते हैं, ये सारे क्वेश्चन तब जनरेट हो रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल एलएफटीज चल रहे हैं, तो जो आपका पहला वाला कमेंट है आई वुड एग्री कि आप 6 महीने के बाद खाली दोनों चीजें करा लें, दैट वुड मेक ए फाइनल डिसीजन, आप बीच में ना कराएं। लेकिन अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है, बॉर्डरलाइन एएलटी 70s 80s में चल रहा है और कंप्लीटली नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, दैट बिकम्स द क्वेश्चन के क्रॉनिसिटी 24 वीक्स गुजर चुके हैं। If we are at 36 weeks or 48 weeks, it is the time when to start with. At times we may start with at 36 weeks, क्योंकि उसके ऊपर कोई क्लियर गाइडलाइन इस तरह की नहीं है कि 24 वीक्स के बाद फिर 6 months ही आपने देखना है।
कंप्लीट नॉर्मल LFTs के साथ अगर पेशेंट को दूसरी इंडिकेशन बन जाती है कि ट्रीटमेंट की और उसका वायरस जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो ही स्टिल मे बी ए कैंडिडेट ऑफ द ट्रीटमेंट एट 36 वीक्स इवन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 24 वीक्स के ऊपर हमने जो है एक्यूट से क्रॉनिक के अंदर ट्रांजिशन हो चुकी है। तो अब व्हेन टू स्टार्ट विद एंटीवायरल एंड हाउ टू मॉनिटर दैट, ये क्वेश्चन वहां पे शुरू हो रहा है। तो अगेन दीज आर ग्रे एरियाज, अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर पीपल में वेरी विद द डिसीजन, क्योंकि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है, जल्दी नहीं करनी चाहिए स्टार्ट करने में हेपेटाइटिस बी के केस के अंदर, क्योंकि एंटीवायरल थेरेपी कोई मैजिक नहीं करती है। It's a lifelong therapy. It just suppresses the viral replication. It does not eliminate the virus from the body. We know that once patient in chronic hepatitis B, the virus is going to live for rest of the life in the body. Even if we were surface antigen negative, surface antibody positive, yes, we do expect कि ये replicate नहीं करेगा, लेकिन still the chances of HCC remain there once exposure to the hepatitis B virus has taken place. Yes, it is more with the childhood exposure. Adulthood में इसका relatively बहुत कम है, लेकिन we know that the viral DNA becomes part of the liver, so it is a lifelong problem. थैंक यू। मैं एक थोड़ा सा कमेंट देना चाहूंगा, फिर एक और केस है, वेरी क्विकली विल गो थ्रू दैट। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन सीरो कन्वर्जन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो गया और एंटी HBs पॉजिटिव हो गया, और आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि एंटी HBs पॉजिटिविटी प्रीवियस इन्फेक्शन से हुई या वैक्सीन से हुई, वो होता है कोर एंटीबॉडी। एंटी HB जो कोर एंटीबॉडी टोटल आप चेक करते हैं, तो अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव है और एंटी HBs पॉजिटिव है, तो ये सीरो कन्वर्जन हुई है ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन। अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, कोर एंटीबॉडी टोटल नेगेटिव है, HBs पॉजिटिव है, तो ये वैक्सीन की वजह से आपको एंटीबॉडी मिली है। जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक टर्म होती है जिसको रिवर्स सीरो कन्वर्जन कहते हैं। ये वो लोग हैं, जिस तरह हमारा पेशेंट है, ये सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो गया, सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया। लेट्स अज्यूम कि खुदा ना खास्ता एट 35 years of age this lady develops rheumatoid arthritis और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और उसको स्टीरॉयड दिए जाते हैं। उस वक्त इसका एंटी HBC टोटल पॉजिटिव होगा, और आपको जिस तरह पहले हमने बात की, चंद सिनारियों में आपको अगर कोई रिटुक्सिमैब या इस तरह का सिनारियो, वहां पे भी आपको वो देना पड़ता है, क्योंकि रिवर्स सीरो कन्वर्जन हो सकती है। ये वो लोग होते हैं जिनका सरफेस एंटीजन नेगेटिव, एंटी HBs पॉजिटिव ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन, एंड दे डेवलप सरफेस एंटीजन पॉजिटिविटी अगेन। तो इस चीज को आपको जहन में रखना होगा। और एक ऑकल्ट हेपेटाइटिस बी होता है, जिसका मतलब ये है सरफेस एंटीजन नेगेटिव, कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव एंड DNA पॉजिटिव, फॉर सम रीजन उनका सरफेस एंटीजन नहीं हो रहा होता। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डू कीप इन माइंड, अगर आपको ये चीजें जब मिलती हैं या प्रीवियस हिस्ट्री मिलती है, इम्यून सप्रेसेंट से पेशेंट ने जाना है, तो उसका ध्यान रखें। तो देयर इज अनदर केस, मैंने वो चैट में बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है, जिशान, इट्स ये मुझे आज व्हाट्सएप पे केस आया फॉर दिस मीटिंग। A 56-year-old gentleman who is hepatitis B surface antigen positive. Hepatitis B DNA is negative, but Delta virus antibody is positive and Delta virus RNA is very high. Unfortunately, there is no value listed in this message. Patient has liver cirrhosis with large esophageal varices. ALT is 58. तो हमारे पास एक cirrhotic patient है with portal hypertension and esophageal varices, surface antigen positive, DNA negative, Delta RNA is high viral load. What do we do? That's again a very good question. Mehak is my resident. I might ask, ये इस तरह के केसेस अक्सर लेके आती रहती है OPD में मेरे पास। तो अगेन देखिए, जिसमें जो data we should be concentrating is this is cirrhotic hepatitis B patients.
Point number 1, cirrhotic with portal hypertension, chronic hepatitis B patient. हेपेटाइटिस बी को ही रखें, खाली डी को अगर थोड़ी देर साइड में रखें हम, तो बी के अंदर ये ग्रे जोन है कि ट्रीट और नॉट टू ट्रीट, इसके ऊपर डिबेट होती रहती है बहुत। अभी तक किसी गाइडलाइन में क्लियर वर्डिक्ट नहीं दिया हुआ कि इसको जो है ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई रिमेम्बर अल्ताफ साहब ने नोरा से हमारी रिसेंट पीएसएच की जो मीटिंग थी ये सवाल किया था, एंड वेयर शी डिड रिस्पॉन्डेड कि yes we should I would like to treat this patient hepatitis B. We are not talking about hepatitis B co-infection right now, hepatitis B cirrhotic with portal hypertension, ठीक है। तो even with HBV DNA negative B के केस में there is a gray zone we should be or we should not be treating, ठीक। तो एक तो वो डिबेट है। दूसरी अब सुपर इन्फेक्शन या को इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस डी। अब डी के लिए जो अप्रूव्ड थेरेपी है वो इंटरफेरॉन है, और इंटरफेरॉन की जो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो सिरोसिस है, ठीक है। इंटरफेरॉन का जो रिस्पांस भी था, जब तक हम ट्रीट करते रहे हैं, मैं 1-2 सालों से नहीं ट्रीट कर रहा है हेपेटाइटिस बी को इंटरफेरॉन से, लेकिन जब हम ट्रीट करते भी थे तो 1 साल की ट्रीटमेंट के अंदर 10% रिस्पॉन्ड करते थे। वो जो 10% थे उसमें से भी 70-80% जो है विद इन 3 मंथ्स जो है ना वापस HBV RNA पॉजिटिव हो जाते थे। So that is the scenario, a very dismal scenario for hepatitis D virus. Then another जो है debate is that when the patient is hepatitis B positive, B की तो viral replication वैसे भी काफी हद तक suppress हो जाती है because of the D, and people are there who would be debating. Again, there is no clear data, there is no verdict from the guidelines, but they say कि आप इसमें treatable virus ही B है, उसी को ट्रीट कर दें। डी की तो कोई ट्रीटमेंट रिस्पांस बहुत डिसमल सा है। बी अगर वायरल सप्रेशन हो जाएगी, सफिशिएंट लीजन प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो डी की सप्रेशन भी इनडायरेक्टली हो जाएगी, बट दैट इज नॉट बीन प्रूवन कंसेप्ट, बट पीपल आर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद एंटीवायरल्स इन डी केसेस, ठीक है। सिरोटिक पेशेंट है, व्हाट आई एम डूइंग अगेन दैट इज इन द पाइपलाइंस, कुछ स्टडीज इसके ऊपर चल रही हैं, बट आई हैव फाउंड in my patients some response to that, to adding on antiviral. Yes, I would like, first question, that I would like to treat this patient with antiviral. I'll be treating with tenofovir with this patient, and I would like to add on the azitamib. It is found to be effective antiviral, but it is not yet been proven. ये अभी तक studies चल रही हैं। मेरे पास मेरा ख्याल है डी के कोई 8 या 7 पेशेंट्स हैं, एंड देव और मेरा ख्याल है उसमें से एक के अलावा बाकी सब ने फर्स्ट 3 मंथ्स में रिस्पॉन्ड किया है HBV RNA नेगेटिव है। दैट्स माय पर्सनल डेटा, पर्सनल एक्सपीरियंस। अगेन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस, बट इट इज बीन डिबेटेड इन मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मीटिंग्स एज वेल कि डी की जो ट्रीटमेंट है। सो माय opinion in this में I would like to treat with tenofovir and azitamib, and I will be following in 3 months time HBV RNA level. Any comments or question on this thing? Dr. Sultan Chandio, sir, can we offer liver transplantation in this case? Definitely. I'm sorry, that वो तो बात हम एंटीवायरल की क्वेश्चन पे रह गए थे। डेफिनेटली पेशेंट यंग पेशेंट 56 ईयर है ना असद, एज कितनी बताई आपने? 56. Relatively middle age male patient है। If there is facility and possibility of liver transplant, that would be the ideal solution for this। cirrhotic liver है और इसको आप transplant करें। I was just engaged in that antiviral scenario. Liver transplant is an option for this patient. Yes. There is another question about hepatitis B, timing of starting antiviral therapy in fulminant liver failure. If the patient has already developed hepatic encephalopathy, or if patient presents with bleeding, then we should not start the treatment right. मेरा ख्याल है जी please. जी मेरा ख्याल है the moment we decide that this patient is having impending liver failure, even I would be very कि अगर impending liver failure है, liver failure
डिफाइन नहीं हुआ गाइडलाइंस के अंदर। गाइडलाइंस के अंदर लिवर फेलियर जो हेपेटाइटिस बी के अंदर जो ट्रीटमेंट की इंडिकेशन डिफाइन होती है वो न्यू अपीयरेंस ऑफ असाइटिस है, ऑटोसिस्टेमिक एन्सेफेलोपैथी है, INR मोर देन 3 है। उसमें ब्लीडिंग का जिक्र ना तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में कहीं पर है, ना ब्लीडिंग का जिक्र कहीं पे एज एन इंडिकेशन में है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अक्यूट लिवर फेलियर, इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन तो है नहीं, तो वो ब्लीड वो तो अल्सर रिलेटेड ब्लीड होगी, वेरी अनलाइकली टू बी वेरिसल ब्लीड को लिवर डिकम्पनसेशन का साइन के तौर पे आप लेंगे। तो लिवर डिकम्पनसेशन अक्यूट के अंदर न्यू अपीयरेंस ऑफ असाइटिस, ऑटोसिस्टेमिक एन्सेफेलोपैथी, डिरेंजमेंट ऑफ जो है INR, इनमें से अगर आपको कोई भी साइन मिलता है तो आई वुड डिफाइन कि पेशेंट लिवर फेलियर में जा रहा है, तो आई वुड स्टार्ट विद इट। ब्लीड करता है या नहीं करता है, आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन इन पेशेंट हु हैव ब्लड इन एक्यूट लिवर फेलियर। थैंक यू वेरी मच जीशान। मैं थोड़ा सा टाइम आपका दूंगा। एक तो थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। आप मैसेज कर सकते हैं, जिस तरह ये एक मैसेज आज आया था जिसको मैंने शेयर किया है, वो एनोनिमस भी जा सकता है, आप खुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एको जो है इसका ऑल टीच ऑल लर्न है। तो ये नहीं है कि हम आपको सिखाने आए हैं, एक्चुअली हम आपसे सीखने आए हैं। तो इसको वी रियली लुक फॉरवर्ड के पेरिफेरी में क्या हो रहा है, हम कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो आप अपने केस सिनारियोज बिला झिझक शेयर करें, और जो भी एक्सपर्ट होंगे, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हम कहते हैं, तो दे विल बी हैप्पी टू कमेंट ऑन दैट। मे बी हम सब सीखें। और जिस तरह ये जो मीटिंग है, दिस इज फुली सपोर्टेड बाय पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी, और मे बी के जो नेशनल लेवल पे जहां पे भी सोसाइटी का जोर चलता है, वो उन शॉर्ट कमिंग्स को इसमें मदद मिलेगी, उनको हाईलाइट करने में, पॉइंट आउट करने में। तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि आप ये जरूर करें। दूसरी जो मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है, ऑफर भी है, आप सब हमें देख रहे हैं एज ए एको हब, पारसा एको हब, आप बार बार नाम सुनते हैं, तो वी कैन एक्चुअली हेल्प यू स्टार्ट योर ओन हब। ये तो आप हमारे साथ देख रहे हैं ना, तो हम आपको, अगर हाफजाबाद में फारूक कोई काम करना चाहते हैं, लाड़काना में कहीं पे, तो हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं टू सेट अप योर ओन हब फॉर एनीथिंग। वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, एंड प्रोजेक्ट एको विल डायरेक्टली बी पार्टनरिंग विद यू। ये हमारा काम है। तो वी जस्ट वांट कि ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, दैट शुड एक्सपैंड टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। तो ये मेरी ये दो चीजें थी। ओवर टू यू किरण। थैंक यू डॉक्टर असद। जैसे कि डॉक्टर असद ने आपको बताया कि यू कैन ऑलवेज शेयर योर ओन केसेस, और इसके लिए बैनर पे यू हैव उजैर्स नंबर। इसके अलावा पारसा एको का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, इफ यू वांट टू शेयर द केसेस विद अस। और फॉर हब अपॉर्चुनिटी आप उसी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन गो थ्रू एवरी स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स ओवर देयर। और इसके अलावा वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर एक्सपर्ट डॉक्टर जीशान एंड ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर असद अली चौधरी, आवर डायरेक्टर, डॉक्टर आमना, आवर फैसिलिटेटर, उजैर, आवर कोऑर्डिनेटर, and Haris for IT support. So Allah Hafiz from now, and Uzair, you can call off the meeting. Okay, ma'am.